Evening, everyone. We have had some technical issues today with our live Yeah. stream. That was the StreamYard. And since it's the first show, I'm also new to it and non-techie. So we had some problems. So here comes Laksh Chaudhary to help me out. So good Hi. evening, Hi. everyone Hi. who's watching us. First of all, Yeah. welcome to this show. It's called Natter Chatter That Matters. And this is a special chat show which I'm starting today for everyone who wants to understand about pageants, who wants to understand about modeling, personality development. So, this is the show where you can ask questions directly from the experts, the title holders, maybe somebody who's from Bollywood, somebody who's from TV. So, a lot of you would be there and you can put up your questions. So, that is why it's natter and chatter that matters. So, No, it being the first day and the first show today, let me invite my very, very dear student, Laksh Chaudhary. I thank will you, just ma'am. tell you 3 bullet points about him, and the rest he will tell you himself. So, first is that he is the youngest Mr. India. The second is he's one of the top models of India. And three, he's a budding Bollywood star. So, fingers crossed where his movie Yeah. goes. And Hmm. the rest of the things he will tell you himself. So, welcome, Laksh, to this Thank you, ma'am. chat show, Natter Chatter That Matters with Rita Thank you. Gangwani. Thank So you so thank you much, for ma'am. joining in and thank you for helping me out. I'm a non-techie person, so now I'm going to learn this, how to actually operate all these live streams. Yes, ma'am. So Sure, sure, please sure. do introduce yourself. Though you are from your own channel, I know everybody knows you. But Yeah. for people who may be watching from my channel, may I Mm. request you to please introduce yourself to everyone? Yeah. So, guys, hi, I'm Laksh Chaudhary. I'm the youngest Mr. India in the history of India, and I've represented my country at Mr. Grand International 2018. Now I'm working as a Bollywood actor, and my movie is gonna release in August. So, yes, a guy with a big heart and a brave mind, you can say. Okay, well, he's being very modest, ladies and gentlemen who are watching us. I have seen uh, how Laksh has gone through this journey of being a 18-year-old innocent boy to where he is today at the moment, an experienced star, an experienced model, and an experienced title holder. And Yes. it gives me immense happiness and feeling of pride that he gave me an opportunity to touch his life through this journey. एंड यू नो जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है ना, ऊंचा ऊंचा होता चला जाता है एंड इट्स डिफिकल्ट कि आप उसके फ्रूट्स को तोड़ सके खजूर के पेड़ की तरह. Yes, लेकिन ma'am. जितना पेड़ हम्बल रहता है, पीपल कैन यू नो break the fruits and enjoy the fruits. So I would say Laksh is like that. In spite of being where he is today, he has maintained his connection with me as his mentor. And every time he's in the city, he makes it a point to either call me or come and see me. And on and off, we do stay in touch even when he's shooting for his film. Yes, sure, तो ma'am. लक्ष्य, I'm sure everybody would want to know कि क्या Hmm. बचपन से ही आपको शौक था? Did you always always wanted to get into the glamour world या अचानक से एक दिन बस ऐसे हुआ कि बस ये करना है? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम पे बहुत ही ज्यादा शर्मीला लड़का था, जो शायद स्कूल प्रोजेक्ट्स में आगे आंसर करने से भी बहुत घबराता था. मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे. मैं एक होता है ना, एक बच्चा होता है जो चुपचाप पतला सा शर्मीला सा बच्चा होता है, उनमें से था. देन एक 2015 की बात है, व्हेन रोहित खंडेलवाल बिकेम मिस्टर इंडिया. So at that time, I first time knew ki, oh, there's something like Mr. India where I can go and I can literally, get into this industry. So I always wanted to be a model, but I never knew how to get into this. So yeah. So for the first thing as a model, I noticed was a good physique. So I still remember 10th. उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम मिथ होता था कि इफ यू वर्क आउट थोड़ी यंग एज में,
तो यू वोंट ग्रो मच, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी. सो उसी उसी डर से मेरे मॉम डैड मुझे अलाउ नहीं करते थे जिम जाने के लिए. सो आई मेड अ क्या कहते हैं प्रॉमिस. उनसे मैंने प्रॉमिस बनवाया. मैंने कहा कि अच्छा, आई विल स्टडी हार्ड, आई विल डू एवरीथिंग, बट मुझे जिम जाने देना. तो उन्होंने कहा हाँ ओके, जैसी 10th पास होगी आई विल लेट यू जिम. तो आई रिमेम्बर द लास्ट एग्जाम आई हैड, एंड लास्ट एग्जाम देते ही शाम को मैंने सबसे पहले जो करा था वो मैंने अपनी जिम की मेंबरशिप ली. अच्छा. वहां पे यस, हाँ अजीब लगता था क्योंकि मैं सबसे पतला लड़का था. यू वोंट बिलीव कि शायद मेरी रिस्ट जितनी मेरी पूरी बॉडी थी, इतना ही था मैं ओ. पूरा. सो या दैट वाज मी. सो आई वर्कड आउट. आई या जैसे नए बच्चे के साथ होता है कि कुछ असर नहीं दिखता, दिस एंड दैट हैपेंड. देन आई रिमेम्बर इन क्लास 11 आई पार्टिसिपेटेड इन मिस्टर नॉर्थ इंडिया दैट यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम. उस टाइम 15 दिन का हमें टाइम दिया था, ग्रूमिंग टाइम होता है वो. सो व्हाट हैपेंड वाज, उस 15 दिन में सब कुछ भूल गया था. पढ़ाई लिखाई, अपने घर का, कहाँ रहता हूँ, क्या कर रहा हूँ. आई ओनली हैड वन थिंग इन माई माइंड, मुझे ये बंद करना है, मुझे करना है. आई रिमेम्बर 7 बजे मेरा कॉल टाइम होता था, एंड आई यूज टू हिट माई जिम एट 4 so that I could be that level, I could reach that level in the pageant. I worked my मैंने पूरा निचोड़ दिया था अपने आप को, but results happened that I wasn't even in top 50, 50, ओ. top 50. ओ. So उस दिन मैं निराश नहीं हुआ, but मुझे पता चल गया था कि where मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ पे है. उस दिन मुझे क्लियर हो गया था. सो उस दिन के बाद से मैं कभी रुका नहीं. और सबसे मजे की बात यह है कि उसी पेजेंट को मैंने जज करा था 2018 में, जहाँ पे मुझे वाओ. टॉप 50 में भी नहीं चुना गया था. सो वाओ. दिस इज वाओ. हाउ, या दिस इज हाउ लाइफ शुड गो. कि आप उस नेगेटिव या उस क्या कहते हैं उस रिजेक्शन को अपने आप में इतना फ्यूल अप कर दो कि जब आप वापस आओ तो इतना इम्पैक्टफुल हो चीज. That's really nice because rejection एक ऐसी चीज है जिससे lot of people are scared. I see so many girls या boys who go for pageants और उनको कुछ मिलता नहीं है, they give up on life, depression में चले जाते हैं, they just break up. But they have to realize कि success पाने के लिए कई बार गिरना पड़ता है, कई बार उठना पड़ता है. You have to be very strong क्योंकि if you get success instantly ना वो टिकती नहीं है. Experience of failure is very important to actually move ahead in life. And that's wonderful, Laksh, because you stuck around and that's how you are so strongly standing in the industry today. अच्छा, एक बात बताओ लक्ष्य, वो तो आपने अभी बताया कि फिजिकली आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने को पैजेंट के लिए. क्या पैजेंट में प्रिपेयर करने के लिए और भी कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है? Yes. Be it pageant, be it modeling, be it acting. First and foremost thing that is required is personality. The way you speak, the way you stand, the way you meet people, the way you behave, the way you eat, everything matters. Personality is the first thing that is noticed by any person around you. So, yes, physique is important, but priority should be personality. कि अगर आप किसी इंसान से बात करो तो वो इंसान आपको हमेशा याद रखे कि हाँ वो इंसान था, उसके तरीके ऐसे थे, उसके be it dressing sense, be it when you are eating with someone, everything matters. And thankfully I got your guidance, तो वो चीज अपने आप सही होती चली गई. Thank you that and I'm very thankful to you that you gave me the opportunity to train you and you learned so well. आप इतने अच्छे से सीखे और आप इंडिया के विनर बन के आए. And then after becoming an India का winner, you went internationally. So थोड़ा सा अपना इंटरनेशनल के बारे में बताइए, because there are so many boys and girls who want to know कि इंटरनेशनल और इंडियन पेजेंट्स के बीच में फर्क क्या है. What is it exactly? क्या होता है वहाँ पे? See, बेसिक चीज अगर आप देखोगे तो इंडिया लेवल पे यू compete with states and internationally you compete with the world. So as simple as that, you have to be extremely unbeatable, extremely like you have to be at your peak, be it your personality, be it your everything, no matter what. So
मेरे साथ बहुत थोड़ा अजीब हो गया था when I went to Philippines. So what happened? I had a connecting flight from India to China, China to Philippines. ओके So my connecting flight from India to China got a bit delayed. थोड़ा डिले हो ओ गया था. ओके सो जैसे मैं चाइना में उतरा, मुझे एकदम से फिलीपींस की फ्लाइट में बिठा दिया गया. तो उससे क्या हुआ, मेरा बैग ट्रांसफर नहीं हुआ था. जो ओहो मैं कपड़ों का बैग और हर सारी चीजें मेरी ट्रांसफर हाँ नहीं हुई हाँ थी. हाँ सो मैं इमेजिन मैं फिलीपींस में उतरा हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरा बैग ही नहीं आया है जिसमें मेरा सारा सामान है. ओके ओके सो आई ओनली हैड वन हैंड बैग जिसमें मेरे गिनती के दो तीन टी शर्ट्स और एक दो जीन्स होगी और एक शूज. ओके सो आई रिमेम्बर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट इवेंट था उस मिस्टर ग्रैंड इंटरनेशनल का, मैंने हर देश के कपड़े पहने हुए थे. किसी की जीन्स, किसी के अच्छा जूते, किसी की टी शर्ट, किसी की जैकेट. सो उस दिन से मेरा मेरा उन लोगों से कनेक्शन बन गया था कि इवन आफ्टर बीइंग कंपेटिटर्स, दे वर हेल्पिंग मी एज अ ब्रदर. सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये चीज देखा इंटरनेशनल जाके कि इंडिया की कितनी इज्जत है. वी ओके आर इक्वली रिस्पेक्टेड एज यूएस और एनी अदर बिग कंट्री. किसी को भी पता चलता था मैं इंडिया से हूं, दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड दे यूज्ड टू क्लिक पिक्चर, लिटरली क्लिक पिक्चर कि इंडिया वाओ से है ये बंदा. इवन इवन इन चाइना की फ्लाइट, आई रिमेम्बर आई वाज वेयरिंग अ जैकेट जिसमें अलग अलग इंडिया के कल्चर्स बने हुए थे. एंड पीपल इन द फ्लाइट वाज सो अमेज्ड टू सी मी एंड दे क्लिक पिक्चर्स, इवन दो ना मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में आती थी ना उन्हें मेरी लैंग्वेज समझ में आती थी. द ओनली थिंग they and me understood was Bollywood. They said Bollywood, I said yes, yes, Bollywood. So that was the only thing that connected us. So internationally, मैंने अपना बेस्ट दिया. Maybe the person who won, he was like my brother. Yes, I was very happy, but yeah, you can never, you know, you can आप कभी भी अपनी जीत या हार डिसाइड नहीं कर सकते. इफ आप शायद उस टाइम हारे तो मे बी समथिंग बिग इज रिटन फॉर यू. एंड आई वाज हैप्पी, आई वाजंट सैड एट ऑल. So that was my experience. वाओ And वाओ yeah, so now I can say I have brothers all around the world, literally more than 50 countries, and they all invite me and we are still in touch, and we still laugh and giggle about that, all those days we spent. And कंपटीशन के टाइम पे कंपटीशन होता था, उससे पहले या उसके बाद कभी कुछ कंपटीशन नहीं होता था. वी यूज्ड तब टू, आप फ्रेंड्स होते थे हाँ, तब आप मोर देन, फ्रेंड्स होते थे यस मैम, फ्रेंड से ज्यादा भाईचारा होता था. मतलब वाओ कि किसी को प्रॉब्लम है तो आपके लिए वहां 10 लोग खड़े हो जाते थे कि टेक दिस, टेक दैट, टेक दिस. सो मोर देन wow अ that's called कंपटीशन. yes या yes that's called sportsmanship and या I think this is something you have to learn. I mean all the people who are watching कि sportsmanship is a part of a pageant, you know, हार जीत तो लगी रहती है, but what you learn in that experience, the kind of people you meet and see, when he didn't have anything, everybody pulled in, सबने अपने कपड़े इनको पहनने के लिए दिए. And I also remember when Manushi went for Miss World, तो अभी भी किसी एक country के बच्चे का गाउन जो था वो डैमेज हो गया था and she volunteered one of her designer gowns and this was actually noticed by the organization and the या other people. This is called congeniality and it's a very very important part क्योंकि कॉम्पिटिटर को अगर आपने कॉम्पिटिटर की नजर से देखा ना तो वो भाईचारा नहीं आता जिसको आपने कहा. And now that you have friends all over the world, it's a या great feeling. It's या a great एग्जैक्टली feeling. एग्जैक्टली या. Right. And Laksh, if I'm not mistaken, आपने modeling में भी अपना try किया था. So यस if यस there is यस. somebody who wants to get into modeling, तो what is the route? कैसे जाए वो modeling के लिए? See, first of all, he or she has to know कि वो fit का होते हैं. There are many type of modeling, be it commercial, be it ramp, be it Instagram modeling and all. So पहली बात, लोग जो आगे नहीं बढ़ पाते, जो फर्स्ट हर्डल होता है वो यही होता है कि हम कौन से टाइप के मॉडल हैं. अगर आपको रैम्प करना है, यू हैव टू बी मोर देन 5'11" एंड अबव फॉर बॉयज एंड 5'9" एंड अबव फॉर गर्ल्स. सो यही एक पहली चीज बेसिक पता होनी चाहिए. ज्यादातर जो हाई फैशन मॉडल्स होते हैं वो बहुत स्किनी होते हैं, बहुत आई डोंट थिंक, बहुत ब्लैंक एक्सप्रेशन होता है उन लोगों का. सो हर चीज की अलग वो होती है, क्राइटेरिया होता है. जैसे हम किसी शॉपिंग पे जाते हैं टी शर्ट खरीदने, तो
हम वही चीज पहनते हैं जो हमें फिट कर रहा है. तो एग्जैक्टली यू Right. हैव टू चूज वे यू फिट इन, नहीं तो आप True. बस भटकते रह जाओगे. True. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया लक्ष्य. A यस lot मैम. of boys who want to go for Miss India और उनका हाइट 5'3", 5'4" ऐसे है. What do बॉयज. you suggest? उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? Because इंटरनेशनली जाने के लिए भी हाइट चाहिए, पैजेंट्स के लिए भी हाइट चाहिए. या And if the boy is 5'3", तो do you think he should apply or he आई should look for some alternative career? आई थिंक मैम जो क्राइटेरिया होता है वो 5'7" एंड अबव होता है फॉर बॉयज. But Yes. I think if you are so willing to work and you look good and you are groomed and all, you should try in commercial modeling because that Okay. doesn't take any height and all, Right. just like Well, ads and everything. Yeah, yeah, that's a wonderful tip for all yeah, those people who are short at height और जो रैंप मॉडल नहीं, फैशन मॉडल नहीं बन सकते हैं. दे कैन बिकम, यू सेड, कमर्शियल मॉडल, yeah. Still, ma'am, जिसमें I हाइट की जरूरत नहीं है. बट स्टिल उसके exactly लिए लुक्स तो फिर भी चाहिए, राइट? looks. I don't think कोई भी ऐसा इंसान है जो नहीं बन सकता. It is all कि you have to get groomed, you have to learn every day, you have to know क्या चल रहा है मार्केट में, be it hair, be it your beard style, be it your everything, the way you राइट. the way you wear and everything, your clothes and all. इट So I don't मैटर्स. think कि हाँ, I don't think कि कुछ भी impossible है. You just have to have knowledge and you have to be groomed. That is all. अब भी ऐसे कई बार मुझे castings आती हैं where they need shorter guys and where we don't fit. Like guys like me who are 6 and 5'11", they don't fit. उन्हें shorter guys चाहिए. So yes, there is work for everyone. It is just you have to find the right track and you have to be prepared. सबसे पहली बात है prepared. जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले हम प्रिपेयर करते हैं. द राइट. सेम वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग, क्योंकि राइट. हमारे जैसे हजारों लोग वहां पे खड़े होते हैं रोज. बिल्कुल सो बिल्कुल यू हैव टू बिल्कुल. बी एक्सेप्शन. मेरा एक खुद का सेइंग है, व्हाट आई बिलीव इन, इफ यू हैव टू लुक डिफरेंट यू हैव टू लिव डिफरेंट. सबसे बड़ी बात. यू कांट. Uniqueness is what will या get you noticed, yeah isn't you it? can't yeah you can't True. live a regular life and still look different. You have to put that 101, not 100, to look Right. different. True. So True. I just just see. Sorry. Yeah. Continue. मैं कुछ और बोलने लगी थी. yeah, just like I told you guys अभी मेरी स्टोरी में that अगर मैं चाहता उस टाइम पे मिस्टर नॉर्थ इंडिया के टाइम पे मैं इजिली सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे वहां जा सकता था. बट आई चोज टू गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट बाय वेकिंग अप एट 4 एंड फर्स्ट हिटिंग द जिम. Right. दिस इज, उस टाइम मुझे लगा कि ये काउंट नहीं हुआ, बट आज जाके मुझे पता चलता है कि वो भी काउंट हुई चीज. Right. No pain, no gain. नो गेन. So people who are watching us, remember, it's like any other profession. जैसे लक्ष्य ने बताया that you have to prepare for any exam. Similarly, you have to prepare for your auditions. You have to prepare for modeling auditions. You Yeah. have to be physically fit. You have to be well groomed. And in case you're wanting to go international, then you have to have a height. And if you don't have a height, then best is to go for commercial modeling. Yeah. I was just saying that I saw my another very own dear student who's watching us, Mannat Sandhu, and she wrote, "I miss you and I miss you too, Mannat, and I look forward to see you home very very soon." Okay, you Yeah. promised and you never came, so you have to come now very very soon. Okay, so Laksh, you know, being in the glamour industry, I'm sure you must have faced a lot of challenges. Yeah. So can you share ऐसा कोई challenge which you overcame and you know, I mean कुछ ऐसी कोई hurdle, कोई barrier which you faced in this industry? बैरियर्स और हर्डल्स तो हमेशा रहे हैं मेरे. अगर आप रेशियो देखोगे रिजेक्शन एंड सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन 10 होगा, रिजेक्शन 90 होगा मेरा. Yeah. सो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं who told me that you are not good enough to be this, you are not meant for this, you are not this and that. But the only thing that helped me to cross any hurdle was taking this negative and converting that into a fuel that pushed me. कि इसने कैसे रिजेक्ट कर दिया, now I'll show him, not in a negative way,
by doing something wrong, but working on myself, and एक दिन वो खुद ही मुझे बुलाएगा. तो same thing happened. I remember there was a show in Delhi only. So I went for an audition उस time पे 2018 I think, and they rejected me out of nowhere. थोड़ा हिंदी में भी बात कर लो लक्ष्य, बिकॉज हिंदी में भी बात कर लो. भाई हम अंग्रेज हो गए ना, घने अंग्रेज हो गए. हिंदी में भी बात आनी चाहिए. वेरी ट्रू. ओके, विकी बख्शी बोल रहे हैं हिंदी में भी बात करो, इंडिया में है. सो इंडिया में है तो मिक्स करके बात करते हैं अंग्रेजी हिंदी. यस यस. तो 2015 की बात है कि एक ऑडिशन हो रहा था एक फैशन वीक के लिए. तो उन लोगों ने मुझे एक वॉक के बाद रिजेक्ट कर दिया था. उसी चीज को मैंने इतना सीरियसली लिया. वो मिस्टर इंडिया से पहले की बात है. वो चीज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उसने एड ऑन करा मेरे फ्यूल अप के लिए. एंड मिस्टर इंडिया बनने के बाद उन्होंने मुझे एज अ शो स्टॉपर चलाया सेम फैशन वीक में. तो यही चीज होती है. जस्ट एक ही चीज करनी है, हर रिजेक्शन हर नेगेटिविटी को आपको फ्यूल अप करना है, और उससे ऐसी कोई हर्डल ही नहीं है जो पार नहीं हो सकती. True, try and try again, you will succeed. Yes, yes, बहुत बड़ी बात बोली बेटा, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो one time, two time try करते हैं and then they give up. But you never know, you have to keep trying till you hit the target. और ऐसा होता ही है जब आप शूटिंग सीखते हैं या जब आप आर्चरी सीखते हैं, तो कभी भी आपका तीर कमान पे एग्जैक्ट टारगेट पे नहीं लगता है. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सिमिलरली आपको बहुत ट्राई करना पड़ता है. एंड यू हैव टू हैव पेशेंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन वक्त बदलेगा तो अपने टाइम पर ही बदलेगा. आपके बोलने से वक्त नहीं बदलेगा. When things have to happen, they will happen. बट भगवान भी उनको देता है जो अपने जर्नी में 100% डालते हैं. And more than 100%, as Shiv Khera says, winners are people who work 1% more than 100%. And that is what makes you different. Yes, yes. लक्ष्य, एक सवाल और आया मेरे दिमाग में कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो मेरे पास ये बहुत क्वेश्चन आता है, गर्ल्स का भी बॉयज का भी. बहुत से पेरेंट्स हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते. दे फील कि नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, इट्स नॉट अ गुड इंडस्ट्री. तो पेरेंट्स को, अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हो तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? हाउ डू यू एक्सप्लेन इट टू देम कि ये इंडस्ट्री कैसी है? सी मैम, हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं. यू कांट स्पेसिफिकली टेल कि इस इंडस्ट्री में बुरे लोग हैं. आई वर्कड विद वेरी गुड पीपल, वेरी जेन्युइन पीपल, एंड इट्स योर चॉइस आप किस रास्ते जाते हो. इट्स नॉट anyone's choice, और नो, आपको कोई फोर्स नहीं करता. वेरी ट्रू. So, वेरी ट्रू. हाँ, बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप एक कॉर्पोरेट में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे. आप अपनी गली में चलोगे, वहां पे भी 10 तरीके के लोग मिलेंगे. सो इट इज ऑन अ पर्सन कि वो किस ट्रैक पे जाता है. जैसे मैं हूँ, आज के टाइम पे मेरे 10 दोस्त हैं जो शायद ड्रिंक एंड ड्रग्स में हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करा. वो मेरी पर्सनल चॉइस थी. मेरे साथ अगर रहे हैं वो लोग, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं भी उनके तरह बन गया, बल्कि शायद 1-2 लोग ऐसे हैं जो मेरे वजह से मेरे तरह हो गए. सो इट इज, आप अपनी एनर्जी और आप अपने मोटिव और आप अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि ये सब चीजें मैटर ही नहीं करेंगी. और जब लोगों को दिखेगा कि ये चीजें मैटर ही नहीं कर रही इस इंसान को, तो कोई ट्राई भी नहीं करेगा. इट इज जस्ट यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. Everybody who's watching us today कहते हैं ना, जब कोई काम करने के निकलते हो तो मर्फीज लॉ इज एट वर्क. मर्फीज लॉ जहां काम करता है ना, वहां हर्डल्स आते ही आते. बट वी आर द पीपल हु नेवर गिव अप. सो हम वापस आ गए हैं. एंड आई वाज टॉकिंग टू लक्ष्य के ग्लैमर इंडस्ट्री को बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा नहीं मानते. तो लक्ष्य ने भी कहा और मेरा भी ये मानना है कि ग्लैमर इंडस्ट्री ही क्यों, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, you will find good people also, you will find bad people also. It's up to you how you carry yourself, because पानी में रहकर भी, कीचड़ में रह के भी कमल खिलता है, right? Yes, ma'am. Exactly. तो अगर आप कीचड़ में भी हो तो भी आप कमल की तरह खिल सकते हैं. It's how you carry yourself, what kind of a company you have, with what kind of people you move around, and what kind of a value you have. So if you're clear about what you are seeking और आप कैसे ढूंढ रहे हैं सही रास्ते को,
तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, और अगर आपकी कंपनी सही है तो वो आपको गलत रास्ते पे जाने भी नहीं देंगे। तो एग्जैक्टली। कि हर इंडस्ट्री में ये होता है। ये मत सोचिए कि बच्चा किसी भी जगह पे सेफ होगा, क्योंकि हर तरह की दुनिया में लोग होते हैं। सो एग्जैक्टली। लक्ष्य, अब यस क्योंकि मैम। ये मुझे मालूम है कि आधे घंटा ही लक्ष्य इसमें हमको मिलता है ऑन इंस्टाग्राम। सो मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो भी देख रहे हैं उनको अपने या अपने फिल्म के बारे में भी जरूर बताएं, एंड उनको एनकरेज करें, बताएं कि कैसे आप फिल्म में गए और आपका किरदार क्या है फिल्म में, एंड जो भी आप ठीक समझें बताने के लिए। सो बिफोर आई टेल अबाउट माई मूवी, इसके पीछे भी मैं एक कहानी बताता हूँ कि कैसे मुझे मिली है, फॉर द पीपल, सो दैट लोग समझे कि पेशेंस और राइट टाइम कितनी बड़ी चीज होती है। सो 2019 दिसंबर से 2020 के दिसंबर, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल, there was a very tough time when I wasn't getting work. I wasn't getting work in terms of, I don't know कि कहाँ बीच में चीज अटक रही थी। मैं मेहनत कर रहा था, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन एक चीज हिट नहीं हो रही थी। वो टाइम होता है जब भगवान टेस्ट करता है कुछ भी बड़ी चीज देने से पहले कि क्या आप उस चीज के लायक हैं। तो वो ही, अगर आप उस चीज को क्रॉस कर दोगे तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंड। सो 1.5 साल बाद मुझे ऐसा कुछ काम मिला था। सोचो 1.5 साल तक मुझे कुछ काम मिला नहीं मिला था। तो ओनली थिंग दैट जिसने मुझे टिकाए रखा वॉज पेशेंस एंड मुझ पे खुद पे बिलीव। सो गाइज, अगर पेशेंस और बिलीफ है तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको कर नहीं सकते। आप अचीव नहीं कर सकते। सो तो ये हुआ था कि मुझे एक ऑडिशन का पता चला मेरे किसी के थ्रू। सो मैं ऑडिशन पे गया, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने बहुत नॉर्मली एक्ट करा। और मेरा एक ये जब आप बॉम्बे में रहते हैं ना, तो आप रोज इतना ऑडिशंस देते हैं कि आप दे के ना भूल जाते हैं कि अच्छा हाँ ऑडिशन दिया, आगे बढ़ गए, दूसरा ऑडिशन दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया। तो वो ऑडिशन दिया था, मैं बहुत न्यूट्रल था उसमें। मतलब मुझे कोई ऐसी नहीं थी कि हाँ हो जाएगा, ये भी नहीं था नहीं होएगा। आई वॉज वेरी न्यूट्रल। सो एक दिन मैं जिम कर रहा था एंड आई गॉट अ कॉल कि लक्ष्य आप ना ऑफिस आ जाओ, ये ऑफिस। एंड मैं गया वहां पे, एंड फिर मुझे डायरेक्टर से मीटिंग कराई उन्होंने। मुझे लगा कि डायरेक्टर मुझसे एक्टिंग करवाएगा, डायरेक्टर मुझसे कुछ इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि डायरेक्टर ने मुझसे बड़ी जनरल नॉलेज और आज के टाइम में क्या आसपास चल रहा है ये चीज पूछी। तो मुझे उस दिन ये लगा कि इस इंडस्ट्री में रह के या किसी भी इंडस्ट्री में रह के सबसे एक जरूरी बात ये होती है कि आपको अपने आसपास की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसने ये चीज ट्राई करी थी कि नॉट ओनली एज एन एक्टर इज ही ऑल्सो अ गुड, क्या कहते हैं, सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्या कहते हैं, ह्यूमन मोर देन एन एक्टर और जस्ट टू आर्टिस्ट, कि बस मुझे एक्टिंग करनी है, उसे आसपास का भी पता है। सो उन्होंने बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा कोरोना का आपको पता है कैसे चल रहा है, दिल्ली में कैसे चल रहा है, यहाँ कैसे चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, एंड कुछ भी एक्टिंग का नहीं पूछा। ओके। फिर मैं ऑफिस से निकला, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये पूछा मतलब क्या ऑडिशन क्या था। ये ना मेरा एक्टिंग का पूछा, ना मुझे डांस कराया, ना कुछ करवाया। 2-3 दिन निकल गए, मुझे फिर दोबारा बुलाया जाता है। बुलाते ही मुझे एक उन्होंने पर्चा सा दिया। उन्होंने दे प्लेड अ ट्रिक विद मी। उन्होंने कहा कि ये ना ऑडिशन स्क्रिप्ट आप पढ़ के देखो। जैसे मैंने स्क्रिप्ट खोली, दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। ओके। सो वाओ। उस टाइम पे मैं नम हो गया था। आई रियली डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। मतलब मुझे समझ नहीं आया रिएक्शन क्या दूं इस चीज का, क्योंकि दिस वाज समथिंग, कहते हैं ना, फल था ये मेरे पेशेंस का, मेरे हार्ड वर्क का, हर चीज का। एंड गेटिंग योर फर्स्ट मूवी, और वो भी इतना बड़ा कैरेक्टर, वाज अ बिग थिंग फॉर एनी पर्सन हु इज इन बॉम्बे। नेचुरली। क्योंकि बॉम्बे में एक छोटे से 1 सेकंड के लिए, रोल के लिए भी कम से कम 10,000 लोग खड़े हैं ऑडिशन के लिए। राइट। सो उस दिन मुझे सारा सारा खेल, सारा षड्यंत्र भगवान का समझ में आया कि क्या चल रहा था इस पेशेंस और ये काम ना होना, ये इस चीज के पीछे। सो उसके बाद में सबसे पहले जो मैं गया, मैंने अपनी
मम्मी को दिखाया कि मुझे मिल गई मूवी, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस कहा मुझे मिल गई मूवी। और सबसे पहले मैंने और मम्मी ने भगवान को थैंक्स करा कि हमें ये लगता था कि सब मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रही है, हो क्यों नहीं रहा काम। तो उस दिन भगवान का आंसर मिला, ही आंसर बैक कि इस वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद वो काम होते तो शायद मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, या कुछ भी, True, true. कुछ नहीं बता सकते कि शायद मैं होता ही नहीं बॉम्बे में उस टाइम। Right. सो द ओनली थिंग दैट, क्या कहते हैं, जिसने मुझे रोके रखा वॉज माई बिलीफ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी तो होगा। Wow. तो इस मूवी का नाम है हिंदुत्व, एंड इसमें मैं कश्मीरी लड़का प्ले कर रहा हूँ, जो बेसिकली आप कह सकते हो विलेन है। इसमें विलेन नहीं है, लेकिन लास्ट में वो नॉट अ बैड पर्सन बाय हार्ट, बट हाँ वो दूसरे लोगों की बातों में आके बुरा बन जाता है। सो बाकी आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी अगस्त एंड में थिएटर्स में। सबसे बड़ी बात है थिएटर में, सबसे खुशी की बात ये थिएटर में हो रही है रिलीज। Very सो nice. Very यस nice. मैम। सो मेरे लिए हर इतना नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कभी सेट पे नहीं गया था फिल्म के, और अचानक आप सेट पे जाते हो, आपको वैनिटी मिलती है। वैनिटी जो आप कभी मूवीज या बातों में सुनते हो कि वैनिटी मिलती है, हाँ. मेकअप वाला मिलता है, आपके Right. साथ स्पॉट वाला मिलता है, जो हमेशा आपको 10 लोग सर सर कह के पुकार बुलाते रहे हैं। हैं. हाँ, और सबसे खुशी की बात है कि मेरे मॉम डैड आए थे, एंड पूरा सेट जानता था कि ये लक्ष्य के मॉम डैड है, मतलब उनको मेरे वजह से जाना जा रहा था। I can imagine तो the pride in या their eyes, you know, as a या parent I can feel कि या आपका बच्चा जब उस मुकाम पे पहुंचता है जो ड्रीम आपने उसके लिए देखा है, तो एज अ हाँ पेरेंट यू फील सो सो वेरी प्राउड। एंड आप जब अपने पेरेंट्स की आंखों में वो प्राइड देखे होंगे तो खुद यस को यस भी कितना अच्छा लगा होगा। एंड यू, आई एम श्योर यस यू मस्ट हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि यस यस। आज वो दिन दिखाया, क्योंकि कहते हैं ना, सो अगेन वही बात आ गई, थिंग्स हैपन एट द राइट टाइम एट एट द द राइट राइट टाइम, प्लेस। बट You have to ऑल्सो have patience. यस मैम, बट ऑल्सो मैंने इस चीज को सर पे नहीं चढ़ने दिया। क्या होता है कि बिल्कुल. जब इंसान को मिलता है ना, तो वो उसका ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो समझता है मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। हाँ. तो आज भी कोई भी इंसान है, चाहे मुझसे कोई गाइडेंस लेता है या मैं सेट पे होता हूँ, मैं हर किसी को वैसे ही ट्रीट करता हूँ जैसे मैं खुद हूँ या मैं अपने किसी करीबी को करूंगा। क्योंकि आई थिंक कि एक पब्लिक का सपोर्ट और लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। ऐसा बहुत कई बार हुआ है, जैसे मेरे जूनियर्स होते हैं मेरे एक्टिंग में, जैसे मूवी में जूनियर्स थे, तो उन्हें इतना समझ नहीं होता कि हम कैसे रिएक्ट करें किसी भी डायलॉग पे। तो उनसे पहले मैं 10 मिनट उनसे मैं इंटरेक्ट करता था, जिससे वो पहले वो कंफर्टेबल हो जाए, नॉट ओनली मी बट वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सी मूवी या कोई भी डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म इज अ कोलैबोरेशन। अगर सब मिलके अच्छा काम करते हैं जब ये एक अच्छी मूवी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि या नॉर्मली अगर हीरो इतना ईगो रखेगा तो हाँ बाकी के जूनियर आर्टिस्ट तो उससे बात करने से भी डरेंगे। हाँ लेकिन अगर डरेंगे। हीरो खुद आके आपसे यस मिल मैम। रहा है, समझा रहा हाँ है, हाँ विच इज अ हाँ वंडरफुल हाँ। थिंग यू डिड बेटा, यस कि मैम। आप एक टीम टीम जब बन जाती है ना, टीम वर्क जब हम्म होता है, सबको साथ लेके जब आप चलते हैं, हम्म that हम्म definitely brings in a lot of success and I'm sure आपका ये हम्म। टीम वर्क हमें आने वाली इस मूवी में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो श्योर मैम। फील कर सकता है एज मूवी या देखते हैं कि व्हाट आर दी अंडरलाइंग वाइब्रेशंस गोइंग ऑन इन द एंटायर टीम। और वही एक मूवी को भी हिट बनाता है। ऑफ कोर्स स्टोरी, या डायरेक्शन, एक्टर्स डू मैटर। एंड आई एम श्योर विद दिस लुक, जो अगर आपका यही लुक अगर है या एज दैट विलियन और जो भी कैरेक्टर आपने बोला, या तो आई एम या श्योर यू मस्ट बी लुकिंग वेरी हैंडसम एंड मे बी मच मोर या। हैंडसम देन अवर हीरो थैंक यू, साहिब, थैंक यू इजंट सो इट? मच मैम। यस, एक्चुअली ये वाला लुक ना डिसाइडेड नहीं था, ये दिस हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर। तो क्या हुआ था, ये आई रिमेम्बर कि उस दिन मेरा शॉट नहीं था, तो मैं नहा के गया एंड आई डिडंट कोम माय हेयर, सो मेरे कर्ली हो गए थे बाल। अच्छा. एंड बाय चांस उसी दिन शॉट, मतलब मैं सेट पे गया हूँ, मेरा क्या होता था, अगर मेरा शॉट होता था या नहीं होता था, मैं मैं जरूर जाता था शूट पे, क्योंकि मोर देन एन एक्टर आई वांटेड टू लर्न कि ये, मतलब नॉट ओनली द थिंग आई एक्ट, बट उसके पीछे क्या होता है, कैमरा कैसे चलता है और लाइटिंग्स कैसे होती है, सब कुछ, एडिटिंग, एवरीथिंग, हर चीज में जानना चाहता था।
तो बाई चांस उन्होंने उस दिन मेरा सीन ले लिया और उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, बाल नहीं हो रही, ऐसी कर ले। एंड देन वो चीज कैमरे पे और मॉनिटर पे इतनी अच्छी लगी, एंड दे वर लाइक कि कीप दिस ओनली। एंड प्लस, हाँ जी, और ये दिस थिंग वर्क फॉर मी, सो यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग फॉर यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लक्ष्य, एक क्वेश्चन आया, अपने डाइट के बारे में बताइए बेटा इन सबको जो भी देख रहे हैं। मैम, आई थिंक कि डाइट, मेरे हिसाब से डाइट एक मिथ है। यू कांट, आप जब तक अपनी बॉडी को सेटिस्फाई नहीं करोगे, आप अच्छा फील नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स योर बॉडी टू हैव समथिंग जो खाना नहीं चाहती। आई थिंक हम, मेरा मेरा लिटरली कोई डाइट नहीं है, मैं बहुत बेसिक खाना खाता हूँ। इट इज जस्ट कि मैं एक स्टेज पे हूँ जहां मुझे पता है कि क्या खाने से मेरा क्या रिएक्शन होएगा बॉडी में, और ये चीज टाइम के साथ ही आती है। सो अगर आपको नहीं पता, सो यू कैन कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको बेटर ये सलाह देगा, क्योंकि फॉर मी, आई लिटरली नेवर हैव फॉलोड अ पर्टिकुलर डाइट। इट has always been very basic. Yes, I work very hard in gym and I'm very consistent about working out and physical activity. अगर मैं एक दिन भी जिम नहीं जाता हूँ या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता हूँ, बी इट रनिंग, बी इट एनीथिंग, उस दिन मैं बीमार फील करता हूँ। लेकिन अगर मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं एक्सरसाइज करता ही करता हूँ, और वो चीज मुझे बहुत बेटर फील कराती है। Yeah, that shows, that definitely हाँ, shows in your body also. यस मैम। And people who are watching, मैं भी ये बोलना चाहूंगी कि ये जो फैट डाइट्स आजकल चली हैं, अगर कोई गर्ल्स यहाँ देख रही हैं, that you want to be size 0 and this and that, see it comes as a package. ठीक है, आपका weight lose हो जाएगा, लेकिन the moment you leave your diet, it will come back to you. इसलिए यस, naturally with workout, with walking, with whatever naturally you can lose weight, तो उसको आप मेंटेन भी कर पाएंगे। ईट सेंसिबली, बस ध्यान से खाइए, आप जो भी खा रहे हैं सिंपल खाइए, ध्यान से खाइए, टाइम पे खाइए, बिकॉज बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा रिच काइंड ऑफ अ फूड आप खाएंगे तो डेफिनेटली वो बॉडी पे भी शो होगा। यस मैम। एक एक और और सवाल, चीज, सॉरी आप कंटिन्यू करो बेटा, कुछ बोल रहे थे। यस मैम, हाँ जी। तो जैसे कि एक बहुत बड़ा ना मिथ होता है कि जो हम टीवी या फोटोज में देखते हैं, जो भी एक्टर्स, मॉडल्स, कि वो हमेशा वैसे रहते हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी एक मूवी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी फोटो के लिए, वो लोग एक हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है जब वो एक्सट्रीम जाते हैं, और उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। सो व्हाट यू सी ऑन द कैम, व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन is something ki that can't be maintained all over the year. So we shouldn't compete with them कि हाँ हम ऐसे बनना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं। एंड उस एक हफ्ते में वो लोग इतने ज्यादा वीक होते हैं, बीट माइंड से, बीट बॉडीली, कि कई बार ऐसा, मतलब चक्कर भी मैंने देखे हैं, मॉडल्स के चक्कर, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, बस वो पोज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी इतनी वीक बना रखी है। तो when it comes for a healthy being, you have to be healthy, you don't have to be weak, you have to eat good. That is all. Eat good. अगर खाना खा रहे हो, yes, eat sensibly. That is all. You don't have to eat boiled food to look clean or something. True. मैंने खुद लक्ष्य, जब मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं मिस इंडिया की तैयारी के लिए, so many times मैंने उनको देखा है वो प्लेन वाटर पे, नींबू पानी पे सरवाइव कर रहे होते हैं। एंड देन आई वंडर कि ये लोग चल कैसे रहे हैं। इट्स बिकॉज दे थिंक कि उस दिन दे वांट टू लुक परफेक्ट ऑन दैट डे, लेकिन एक दिन की परफेक्शन के लिए, रैंप पे दिखाने के लिए, दे लूज आउट ऑन देयर हेल्थ। इसीलिए बात यही है कि अगर आपको समझ नहीं है तो बेस्ट इज, जैसे लक्ष्य ने कहा, यू मीट अ न्यूट्रिशनिस्ट जो आपको एक बैलेंस डाइट बना के देगा। घर की ही डाइट हो, बैलेंस्ड हो, सेंसिबली खाओ, टाइमली खाओ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी हमारी, जैसे सोने के टाइम उठना होता है तो बॉडी को भी भूख टाइमली लगती है, और उसी हिसाब से अगर आप उसको खाना देंगे और सेंसिबली देंगे तो वो भी आपको वापस जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। Exactly. एक सवाल जो आया था, दैट इज, हाँ बोलो, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस कि व्हेन जब इंसान इतना एक्सट्रीम चले जाता है ना, वो उसकी शक्ल पे दिखता है, वो ग्लो, दैट फ्रेशनेस गोज अवे। फॉर पेजेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फ्रेश एंड लुक लाइक यू, लाइक वो चमक, वो फ्रेशनेस बहुत जरूरी है स्टेज पे होना। तो आई थिंक उस टाइम पे कोई एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए किसी को। उस टाइम क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है,
तो if your brain won't work, that is of no use. वो body किस काम की रहेगी? You are not in a bodybuilding competition. True, absolutely. I completely agree. एक सवाल आया था कि what are the requirements to be Mr. India? तो एक तो आपको लक्ष्य ने बताया ही है already कि to go for Mr. India you should have a good height. You know, बहुत से बच्चे छोटी हाइट के अगर जाते भी हैं तो वो स्टैंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली यहाँ से चलो जीत भी गए किसी तरीके से, जब आप इंटरनेशनल जाएंगे सभी लोग 5'11", 5'10" ऐसे हाइट में होंगे, तो यू विल नॉट स्टैंड आउट. तो यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू हैव अ ग्रेट बॉडी, क्योंकि एक फिजिक राउंड भी होता है जिसमें आपको अपनी बॉडी दिखानी पड़ती है, आपको अपने टैलेंट के लिए प्रिपेयर करना होगा, आपको अपने नेशनल कॉस्ट्यूम के लिए प्रिपेयर करना होगा, आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होगा. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स गो इनटू मेकिंग मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया और एनी अदर पैजेंट, क्योंकि पूरी तैयारी करनी पड़ती है. और मेरे पास एक सवाल ये भी आता है कि क्या एक मॉडलिंग स्कूल को या एक पैजेंट स्कूल को ज्वाइन करना जरूरी है? तो उसका मैं यही जवाब देती हूँ कि देखा जाए तो अच्छा होगा कि अगर आप ज्वाइन कर सकें, क्योंकि जब आपको पता होता है व्हाट लाइज अहेड, आपको एक मेंटर मिलता है जिससे आप डिस्कस कर पाते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि यू नो आई नो हाउ टू स्टैंड आउट इन द क्राउड. लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी कोई समझ नहीं होती, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, देन देयर आर चांसेस कि आप वहां पे कहीं ना कहीं गूफ अप कर लेते हैं. तो अगर जा ही रहे हो इस लाइन में तो बेस्ट इज टू बी बेटर प्रिपेयर्ड. आप फिजिकली भी बॉडी को प्रिपेयर करो, मेंटली खुद को प्रिपेयर करो कि हाँ जीत हार जिंदगी का एक हिस्सा है, मैं जीतूं या हारूं, बट इस कंपटीशन से मैं बहुत कुछ सीखूंगा. और जो भी ग्रूमिंग आपको मिलती है किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए, दैट इज लाइफ लॉन्ग. आप चाहे पर्सनल लाइफ ले लो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ ले लो, हर जगह वो काम आएगी. कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना खाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, बहुत सी चीजें आप सीखते हैं. तो बेस्ट इज दैट यू ज्वाइन. और किसी ने एक सवाल पूछा है, बेटा वन मिनट आई जस्ट फिनिश इट. एक सवाल किसी ने पूछा है मेरे बारे में कि आप कहाँ सिखाती, तो मैं आपको बताऊंगी मेरी जो अकेडमी है उसका नाम है रीगा हाउस. आई एम बेस्ड इन गुड़गांव, और मैं वन एट अ टाइम एक ही स्टूडेंट लेती हूँ 2 घंटे का. सो एक दिन में सिर्फ 4 स्टूडेंट लेती हूँ. आई डोंट टेक ग्रुप्स, ताकि मैं बच्चे को अपना 100% दे सकूं. हाँ लक्ष्य, आप कुछ कहना मांग रहे थे बेटा? यस मैम, जैसे आपने अभी बताया कि नॉट ओनली फॉर दिस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, बट इट जो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं इट स्टेज लाइफ लॉन्ग. सो इससे क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही अभी मैं दोबारा देहरादून गया था. सो क्या हुआ था, मेरे एक दोस्त का शूट था नेटफ्लिक्स का. सो मैं भी वहां गया. जैसे मैंने कहा मुझे बड़ा शौक है सीखने का, तो वहां गया एंड मैं अब मेरी आदत क्या है, आदत ऐसी पड़ गई है, एक बार आप चीजें करते रहते हो ना कि हमेशा आई मेक श्योर आई ड्रेस वेल, आई मेक श्योर कि आई एम लुकिंग ग्रूम्ड. ऐसे ही मैं सब कुछ पर्सनालिटी, द वे आई वॉक, एवरीथिंग, ये चीज मैंने कंसिस्टेंट रखी है, तो ये मेरे लाइफस्टाइल में आ गई है. सो आई वॉकड इन द शूट, मैं सेट पे गया एंड यू वोंट बिलीव मैम, आई वाज जस्ट सिटिंग एंड उन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे एक कैरेक्टर दे दिया नेटफ्लिक्स में. वाओ. Just because of my personality, they liked my personality and they themselves said कि there's something in you that stood out of जितने भी वहाँ पे 150 लोग थे. And I literally didn't approach them or anything, but सामने से खुद आया. So this is how it works. If you are working, वो चीज दिखता है. True, so, true. Yeah, first impressions matter a lot. First impressions matter a lot. Matters a lot. So yeah, so उस दिन ये भी समझ में आया कि पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट, द वे यू टॉक. मैंने उस डायरेक्टर से शायद बस एक बार बात करी थी, बट इवन दो आई वाजंट वर्किंग देयर किसी भी चीज के लिए, दैट जस्ट अ स्मॉल टॉक उसके दिमाग में इतना इम्पैक्ट हो गया था दैट शी एडेड मी इन द सीन सो दैट वो सीन और बेहतर हो सके. So, ये चीज That's wonderful. So yeah, so जैसे लक्ष्य ने कहा आपसे, वैसे ही मैं भी कहूंगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पैजेंट प्रैक्टिस या मॉडलिंग की आपको बेसिक नॉलेज अगर किसी के थ्रू मिलती है तो जरूर ज्वाइन कीजिए. अगर आपकी पॉकेट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है तो आप बहुत से चैनल्स हैं. मेरा अपना यूट्यूब चैनल है और मैंने कुछ नहीं छिपाया. मेरा यूट्यूब चैनल है विच इज कॉल्ड ट्यूटोरियल्स टू विन अ ब्यूटी पैजेंट. आप वहां पे जाइए, आप समझिए कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं क्लास में देती हूँ वो सारी वहां पे मिल जाएगी.
यू कैन ज्वाइन दैट। और अगर आप पर्सनली आके सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन मी। और मुझे यहाँ पे हाँ बोलो बेटा। बोलना चाहूंगा मैम इस चीज का कि कोई भी किसी भी फील्ड में हर कोई सीख के आता है सेम चीज, बट एक जो चीज स्टैंड आउट आपको करती है वो होते हैं नुस्खे। लोगों कहते हैं नुस्खे होते हैं ये, और वो नुस्खा एक गुरु ही सिखा सकता है। तो इस फील्ड में भी एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो वो नुस्खा एक समथिंग एक स्टैंड आउट करवा सके, और उससे क्या होता है चीज इजी हो जाती है। True. क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस करा होता है ये चीज की इफ दिस हैपेंस डू दिस। सो उस टाइम हम ब्लैंक नहीं होते कि अरे अब क्या करें। So that is why also it is very important to have some classes and basic knowledge about this. Well, that is so nice of you to say, Laksh. आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे एक फीडबैक मिल रहा है आपसे. I also see a lot of my other students. Sanvi Arora has also joined us, and Sanvi, ladies and gentlemen, has also been my student. I think 2 साल हो गए, and we have Mannat Sandhu, and मैं बाकी ठीक से देख नहीं पा रही हूँ छोटे से फोन में, बट आई एम श्योर 2-3 और बच्चे जरूर इसमें होंगे जो मुझसे पढ़ के गए हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. बहुत अच्छा लगा लक्ष्य आपसे बात करके. वी हैड टेक्निकल इश्यूज फाइन, बट आई रिक्वेस्ट यू टू डू सेव दिस वीडियो so that I can upload it on YouTube, and जो वेट कर रहे हैं YouTube पे वो भी देख सकें और आपके एक्सपीरियंस से सीख सकें. You have given us a lot of tips, you have given us a lot of journey. तो कमिंग बैक टू इसको समराइज करने के लिए मैं सबसे यही कहूंगी कि जिंदगी में पेशेंस सबसे पहली चीज है जो जरूर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बुरा वक्त हर टाइम चलेगा. लाइफ इज लाइक अ व्हील, बुरा आता है तो अच्छा भी आता है. तो अगर आपका पेज लो चल रहा है इस वक्त तो डोंट वरी, जस्ट हैव पेशेंस, अच्छा वक्त भी जरूर आएगा. दूसरा, लोग अगर आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, हर्डल्स आपके सामने आते हैं, तू कर नहीं सकता, तेरे बस का नहीं है, ये सारी चीजें जब लोग आपके ऊपर फेंकते हैं तो इन पत्थरों के नीचे दबना नहीं है. आपने इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के एक ब्रिज बनाना है और उसी के ऊपर चढ़ के लोगों को दिखाना है कि हाँ देखो, तुम ही लोग मुझ पे हंसते थे, अब मैं तुमसे कहीं ऊंचा हूं. और तीसरी चीज, हमेशा हम्बल रहो. जैसे कि लक्ष्य ने कहा कि मैं कितना भी बड़ा हो गया हूं, मैं अभी भी अपने जो मेरे आर्टिस्ट हैं उनसे भी जाके बात करता हूँ. मैंने जिंदगी में कभी भी ये चीज नहीं सीखी कि आपको ईगो अपने अंदर लाना है, प्राइड अपने अंदर लाना है, क्योंकि जब ये चीज आपके अंदर आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं इस बैटल में पीछे रह जाते हैं. और आपको याद रखिए ये बात, लक्ष्य, मैं आपको भी ये सलाह दे रही हूँ एज ए गुरु, और जो देख रहे हैं उनको भी ये बोल रही हूँ कि आपको बनाने वाले आपके फैंस होते हैं. तो जब कोई फैन आपसे बात करना चाहिए, आपसे पिक्चर लेना चाहे, यू हैव टू बी देयर फॉर देम, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप हैं. अगर आपके फैंस नहीं हैं तो आप नहीं हैं. सो ऑलवेज रिमेन हम्बल टू ईच एंड एवरी पर्सन हु अप्रोचेस यू, एंड रिमेंबर थिंग्स हैपन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो ये हमारी आज की लर्निंग है इस क्लास से. और ये भी हमने देखा कि एक चीज से दूसरी चीज निकल के आती है. मॉडलिंग से पैजेंट निकल के आया, पैजेंट से फिल्म निकल के आई, अब ये बॉलीवुड से हॉलीवुड भी जल्दी ही निकल के आएगा. सो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और जिंदगी में हार नहीं माननी है. गिरते पड़ते, लुढ़कते, रेंगते, कैसे भी करके जर्नी को क्रॉस करना है. गिव अप नहीं करना है. ना लक्ष्य ने गिव अप किया, ना मैंने गिव अप किया. मेरी भी अगर आप स्टोरी जानना चाहें तो टेड टॉक पे मेरा नाम डालिए या जोश टॉक पे मेरा नाम डालिए, आप मेरी जर्नी भी देख पाएंगे कि वी आर द पीपल हु नेवर गिव अप इन लाइफ, एंड वी विल नेवर गिव अप इन लाइफ टिल आवर लास्ट ब्रेथ. राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. थैंक यू लक्ष्य फॉर जॉइनिंग एंड इंस्पायरिंग. सबको बहुत अच्छे टिप्स दिए. आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ग्रेटफुल एंड आई ब्लेस यू. आने वाले आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, खूब ऊंचे जाओ, खूब नाम ऊंचा करो, और आपके शोल्डर्स पे चढ़ के मैं भी अपना नाम ऊंचा करूंगी. Yes, ma'am. Surely, ma'am. Thank you, beta. God bless you, and thank you everyone for joining. Thank you. Thank you. Bye everyone. Bye.